Hello everyone, welcome to Study with Masters. Today we will begin a new series that is to the point. Keeping in view the recent prelims notification of MPPSC, we have started this series that will cover all the basic subjects unit wise. It is not only important for MPPSC but for other competitive exams as well. It will help you generate a general understanding about core concepts of topics like geography, history, etc. So let's begin. Today, we will deal with Unit 4, topic Physical Geography according to prelims syllabus. Now, let me introduce myself to you. Hello, I am Tanya Agrawal. I have qualified prelims for MPPSC 5 times, given interview for 2018, and have a decent teaching experience of 5 years. So I can help you out, strategize your plan to achieve your goal. So let's begin. So the first topic in our series is physical geography, under which we will deal with physical features and natural regions. Under that, first topic is the universe. Now, first of all, what do you understand by the term geography? इसको हम एक नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं. हम इस फीचर को यहाँ पे हम एक इस इंडिविजुअल को यहाँ पे अपना लीड एक्टर मानते हैं. ये हमसे पूछ रहा है कि ज्योग्राफी क्या होती है, तो हम इसको जनरलाइज टर्म्स में सिखाएंगे. ये इंसान या कोई भी इंसान आज एक रूम में बैठा है. वो रूम उसके घर का पार्ट है, उसके हाउस का पार्ट है. उसका हाउस एक कॉलोनी का पार्ट है. उसकी कॉलोनी एक कोई एरिया स्पेसिफिक का पार्ट है. उसका वो एरिया किसी सिटी का पार्ट है. फिर वो सिटी किसी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है. वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट का पार्ट है. वो स्टेट इंडिया का पार्ट है. इंडिया एशिया का पार्ट है. और एशिया वर्ल्ड का पार्ट है. और ये वर्ल्ड एक गैलेक्सी का पार्ट है. और ये गैलेक्सी किसका पार्ट है? यूनिवर्स का. तो the unfolding of a person's location also tells us about different cultures, different types of habitation, different types of physical features of that place. So that is what is geography. It is the description of the earth. Description of the earth. It's derived from Greek word geos and graphos. That means description of the earth. Now, what do you understand by the term geoid? So basically, it means earth-like shape. Earth-like shape. Now, earth has a very unique shape. It is flattened at the poles and bulges out at the equator. It is also called oblate spheroid, a spheroid that is flattened at both the tops. So this shape is called geoid. Then geodesy is the study of shape of the earth. Let's move on to our main topic. Before that, Herodotus, father of history as we know him, he gave a very famous line. All history must be treated geographically and all geography must be treated historically. That means there is an interlinkage between both. A particular area, the type of people who reside over there, their culture, their habits are much influenced by the climate of that place, the type of soil available. All this is geography, and their past experiences in totality are their history. So there is an interlinkage between the two. Okay. Now, these are some highlights that you need to
just learn. You need to just memorize because they are questions in themselves. Either they will come in prelims directly or in mains, it can be asked in 3-marker. Hecataeus was father of geography. His book was Ges Periodus. Then Eratosthenes was the one who first used the word geography, and therefore he is called father of geodesy. Then Humboldt is called father of modern geography, climatology and vegetation geography. Ratzel is father of political and human geography and father of Lebensraum. Lebensraum का मतलब होता है एक स्पेसिफिक एरिया जहां पे डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व करती हैं. विडाल डेल लाचे was the real founder of human geography. इसमें आप दो वर्ड को ऐड करेंगे, वो है थेल्स एंड एनेक्सिमैंडर. ठीक है, तो थेल्स ने क्या किया था, पहली बार अर्थ के एरिया को डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी, और एनेक्सिमैंडर ने मैप्स ड्रॉ किए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ कार्टोग्राफी भी बोलते हैं. इन दोनों को फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी बोला जाता है. इसको आप ऐड कर लें. ठीक है, चलिए हम आगे मूव करते हैं. द यूनिवर्स. अब हम यूनिवर्स से क्या समझते हैं? सो ऑल द हेवनली बॉडीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मीटियोर्स टुगेदर are termed as the universe, and these bodies are called celestial bodies. So together all the celestial bodies are called universe, and the science of studying these heavenly bodies is astronomy. Now what are the theories related to the universe? So first theory, wait a minute. So firstly, the theories can be divided into two parts, that is the early theories and later ones called the modern theories. In the early theories, there are again two theories, geocentric and heliocentric. इनके नाम से ही पता चल रहा है, जियो मतलब अर्थ होता है, तो अर्थ अगर सेंटर में है और बॉडीज रिवॉल्व कर रही हैं तो वो हो गई जियोसेंट्रिक थ्योरी, और इसको दिया था टॉलेमी ने. उनके अकॉर्डिंग अर्थ सेंटर में है और बाकी सारे जितने प्लैनेट्स हैं, सन है, वो सब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. लेटर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई जिसे कोपरनिकस ने दिया, और उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, सन सेंटर पे है और सारी बॉडीज उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं. इसको आगे जाके केपलर भी प्रूव करेंगे और अपने प्लैनेटरी मोशन के लॉ देंगे. अब आती है मॉडर्न थ्योरी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी. जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है, बिग बैंग मतलब कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, एक्सप्लोड हुआ होगा, कोई एक बड़ा इवेंट हुआ होगा. बिग बैंग थ्योरी सिंपल आप यहां समझ लीजिए, फिर हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे. एक प्रिमेबल एटम था या एक स्मॉल एटम था जिसकी इनडेफिनिट वॉल्यूम टेम्परेचर था, लेकिन स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता था. इसमें कुछ साल बाद क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और ये स्प्रेड होने लगा. जब ये स्प्रेड होने लगेगा तो इसके कुछ कुछ पार्टिकल्स अपने पास आएंगे क्लाउड के फॉर्म में, और वहां से बर्थ होगा प्लैनेट्स का. जो प्लैनेट्स नहीं बन पाएंगे वो इन द फॉर्म ऑफ एस्टेरॉइड्स क्या करेंगे, सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे. कुछ कॉमेट्स के फॉर्म में हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कुछ स्टार्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और ये सब क्या बना देंगे, अल्टीमेटली हमारा यूनिवर्स. ठीक, तो अब स्टडी करते हैं. इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय जॉर्जेस लेमेटेर. ही स्टेटेड दैट ऑल मैटर forming the universe existed in one place in the form of a tiny ball called primeval atom. पहला कीवर्ड. with unimaginable small volume. Second one, infinite temperature. Third point, and fourth, indefinite density. इन पॉइंट्स को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. तो ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल, उसे बोला गया प्रिमेबल एटम. अब प्रिमेबल एटम के क्या क्या फीचर थे,
इसकी वॉल्यूम बहुत ही स्मॉल थी, टेम्परेचर इनफाइनाइट था और डेंसिटी इनडेफिनिट थी। एक्सक्यूज मी। 15 बिलियन ईयर्स अगो एक एक्सप्लोजन होता है और ये प्रिमेबल एटम डिसइंटीग्रेट होता है। दैट गिव्स राइज टू स्पेस एंड टाइम एंड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स जो आज भी चल रहा है। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज एंड ये गैलेक्सीज एक्सपैंड होती जा रही हैं और आज भी क्या हो रहा है, यूनिवर्स अपने कौन सी स्टेज में है, एक्सपेंशन वाली स्टेज में है। अब इसको प्रूफ किसने किया, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था टेलीस्कोप की हेल्प से, उसने प्रूफ किया और लेटर रेड शिफ्ट थ्योरी ने भी इसको सही प्रूफ किया। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, बिग क्रंच। इसमें क्या होगा, at some point of time the universe would reach its maximum size and then it will begin to collapse। ठीक है। लार्ज हेड्रन कोलाइडर, सन ने इसको बनाया था, अभी इसको बंद भी कर दिया गया है। तो यहाँ पे रिक्रिएट करनी चाहिए थी कंडीशंस बिग बैंग के बाद की, ताकि हम इसे एक अच्छे से समझ सकें। रेड शिफ्ट थ्योरी किससे रिलेटेड है, डोपलर इफेक्ट से, ये इसका कीवर्ड है। अब हम देखते हैं क्या होता है इसमें। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या डिस्क्राइब करता है कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट के तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है, तो जो हमारा लाइट का स्पेक्ट्रम होता है उसमें जैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो हमें डिसाइड करते हैं या बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ आ रहा है या फार अवे जा रहा है। ठीक है। तो अगर फार अवे जा रहा है तो जो लाइट होगी स्पेक्ट्रम में वो रेड एंड में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि रेड एंड की वेवलेंथ लॉन्गर होती है। और अगर वो हमारे तरफ आ रहा है तो डॉपलर शिफ्ट क्या हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी में, और लाइट कहाँ मूव हो जाएगी, ब्लू एंड पे, और वेवलेंथ वहां पे क्या हो जाएगी, ब्लू लेंथ की क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है। तो ये डिस्क्राइब करता है फिनोमिना को। और रेड शिफ्ट को पहली बार किसने डिस्क्राइब किया, एडविन हबल ने, जिनका रिलेशन किससे है, हबल टेलीस्कोप से। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो बॉन्डी गोल्ड और फ्रेड ने दी थी। इनका बोलना था कि एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ये इसका कीवर्ड है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो यूनिवर्स हम देख सकते हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो द नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, द गैलेक्सीज आर कांस्टेंट एंड न्यू गैलेक्सीज आर कंटिन्यूअसली बीइंग क्रिएटेड out of empty spaces left after some galaxies left the observable stage. So after some of them, what they did, after some of them left the empty spaces, उन spaces को किसने ले लिया, new galaxies ने ले लिया। ठीक है। तो ये किसने दी थी थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी बॉन्डी गोल्ड और फ्रेड ने दी थी। ठीक है। पल्सेटिंग थ्योरी, पल्स जनरेट होती है, कभी हाई पल्स कभी लो पल्स। तो यहां बोला जा रहा है पल्सेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी एक्सपेंशन चल रहा है, इसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और ये ऐसे ही ऑल्टरनेटली काम करता जाएगा। एज क्या है यूनिवर्स की, 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। सोलर सिस्टम 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और सन 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, यूनिवर्स के कंपोनेंट क्या क्या है। तो यूनिवर्स मैक्सिमम बना है डार्क एनर्जी से और डार्क मैटर से। ठीक है, जो विजिबल नहीं है। जो मैटर विजिबल है वो सिर्फ 5% है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस से ये बना हुआ है। तो वी आर कंसर्न विद दिस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा आज हमने टॉपिक 1 कंप्लीट किया, यूनिवर्स। अब हम इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जो है आर सोलर सिस्टम। ठीक, तो सोलर सिस्टम ये देखिए, सन, द 8 प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, कुपर बेल्ट, everything you can see over here combines and form our solar system. Now, सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के लिए थ्योरी है नेबुलर थ्योरी लैपलास की। उसने बोला कि नेबुला इज द बर्थ प्लेस ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नाउ नेबुला इज जस्ट अ व्हाट इट इज, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जहां पे छोटे पार्टिकल्स पास आते हैं और एक प्लैनेट की फॉर्मेशन करते हैं। A giant interstellar cloud known as solar nebula gave birth to our solar system.
तो जाइंट इंटरस्टेलर क्लाउड था, नेबुला, इसको सोलर नेबुला बोला जाता है। वहां पे क्या हुआ, हमारा सोलर सिस्टम बॉर्न हुआ। द नेबुला स्टार्टेड इट्स कोलैप्स एंड core formation some 5 to 5.6 billion years ago, and the sun and the planets were formed 4.6 billion years ago. ये थी लैपलास की नेबुलर थ्योरी। जो आपको याद रखना है, ये प्री में पूछ सकता है कि नेबुलर थ्योरी किससे रिलेटेड है, और मेंस में पूछ सकता है कि ओरिजिन या फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ था। नाउ प्लैनेट की देखो फॉर्मेशन कैसे हुई। तो अब ये बोल रहे हैं कि सोलर सिस्टम कैसे बना था। एक नेब्यूला था, वहां पे गैस और डस्ट पार्टिकल्स पास में आएंगे। तो ये एक बड़ा इवेंट जब बना तो इसने एक प्लैनेटरी डिस्क का शेप लिया, प्रोटो सिंगल प्लैनेटरी डिस्क। उस प्लैनेटरी डिस्क से छोटे छोटे पार्टिकल्स वहां पे देखने को मिले। इन छोटे पार्टिकल्स ने एक छोटा प्लैनेट बनाया। फिर बाजू वाले पार्टिकल्स के छोटे प्लैनेट आपस में आए, इंटरैक्ट किया, और फिर एक बड़ा प्लैनेट फॉर्म हुआ। तो प्लैनेट फॉर्मेशन में पहली स्टेज होती है प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क, फिर होती है प्लैनेटेसिमल्स, फिर होती है प्रोटो प्लैनेट्स, और फिर होते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, ये इतना बस समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये पूछा नहीं जाएगा। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सोलर सिस्टम के। सन, 8 planets, dwarf planets, Pluto, Ceres, Eris, satellites, and countless minor planets, meteors, asteroids, and comets, and the debris. ये सब मिला के क्या बना, सोलर सिस्टम। उसमें सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी, जो क्लोजेस्ट है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ये स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट ऑफ ऑल है। यहाँ ना तो वाटर है, ना गैस है, और ना ही ओजोन है। इन बेसिक पॉइंट को आप याद रखो, यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि हम रेस से तब आउट होते हैं जब हम बेसिक क्वेश्चन को गलत करते हैं। इससे फर्दर डिटेल का जो बोलना चाहिए कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है, वो बहुत लो है। आपको इन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा डीप में अंदर पढ़ना नहीं है, आप सिर्फ इसको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए रखिए। इनके इन बेसिक्स पॉइंट्स को याद रखिए और आपको ये गारंटीड गुड मार्क्स दिलाएगा। नेक्स्ट, वीनस। वीनस को क्या क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, क्योंकि ये क्लाउड ऑफ गैसेस से घिरा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं वेल्ड प्लैनेट। अर्थ की ट्विन बोलते हैं क्योंकि इसका साइज और शेप एकदम सेम है अर्थ से, और इस वेल के कारण ही ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन है और ना तो वाटर है। ठीक, और वीनस और यूरेनस के बीच में कॉमन पॉइंट है कि ये इनका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो सबके जस्ट ऑपोजिट है, ये याद रखना। अब आते हैं द अर्थ। वैसे तो द अर्थ को हम और अच्छे से, क्योंकि यही पढ़ना है हमको बेसिकली ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में, तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब अभी बस जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लीजिए। लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट है, इट इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। ये जो इसके एक्सिस है इस पे ये टिल्टेड है 23.5 डिग्रीज। रोटेशनल स्पीड 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.0191 सेकेंड्स। स्पीड इज 1610 किलोमीटर पर आवर। रेवोल्यूशन 365 डेज 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स है। और ओनली प्लैनेट है जहां पे क्या होता है, एग्जिस्ट करती है लाइफ। मार्स रेड प्लैनेट क्यों है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड है। ओलंपस मून इसका शील्ड वॉल्केनो है, लार्जेस्ट वॉल्केनो और हाईएस्ट नोन माउंटेन। इसमें थिन एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है और मीथेन गैस का प्रेजेंस देखने को मिला है मार्शियन एटमॉस्फेयर पे, ये याद रखना। इसके 2 मून्स हैं, फोबोस एंड डेमोस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन अगर आपको याद हो तो क्या था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जुपिटर, लार्जेस्ट है इन द सिस्टम। गैनीमेड इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है। ठीक, नेक्स्ट सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट है, इसके अराउंड क्या है, कंसेंट्रिक रिंग्स हैं। और टाइटन इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट। आपका आज का होमवर्क है, आपको ये बताना है कि कौन से प्लैनेट की सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। ठीक, नेक्स्ट यूरेनस ग्रीनिश है कलर में, 4 टाइम्स साइज ऑफ अर्थ है। पहला प्लैनेट जिसको टेलीस्कोप से डिस्कवर किया था सर विलियम हर्शल ने, फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप, और ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। तो ये यूरेनस और वीनस क्या है, सेम ऑपोजिट रोटेट करते हैं। एंड प्लैनेट इंक्लाइंस ऑन इट्स साइड, क्योंकि ये टिल्टेड है इसलिए इसको बोला जाता है। नेपच्यून
मीथेन रिंग से सराउंडेड है और यूरेनस के जैसा ही। प्लूटो प्लैनेट नहीं है। यहाँ पे IAU ने डिफाइन किया है प्लैनेट को, जो ऑर्बिट करता है सन के अराउंड, जिसमें सफिशिएंट मास होता है ताकि वो एक इक्विलिब्रियम, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब नियरली राउंड शेप अचीव कर सके। इट इज नॉट अ सैटेलाइट और मून ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और and has removed debris and small objects from the area around its orbit। तो ये सब चीजें फुलफिल नहीं करता था प्लूटो, इसलिए 2006 में उसको क्या दे दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट का टर्म दे दिया गया। कूपर बेल्ट क्या होती है, रिंग ऑफ डेब्रिस, ये इंपॉर्टेंट है, रिंग ऑफ डेब्रिस सिमिलर टू एस्ट्रॉइड बेल्ट बट कंसिस्टिंग ऑफ मेनली ऑब्जेक्ट कंपोज्ड ऑफ आइस से कंपोज्ड होती है। तो रिंग ऑफ डेब्री जो आइस से कंपोज होती है सिमिलर टू एस्टेरॉइड, उसे बोलते हैं कूपर बेल्ट। अगेन 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्टेरॉइड्स को क्या बोलते हैं, माइनर प्लैनेट। इनकी एक स्पेसिफिक लोकेशन है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। ये वो डेब्री हैं जो प्लैनेट नहीं बन पाए लेकिन ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया, माइनर प्लैनेट्स। क्योंकि प्लैनेट वर्ड है ना, उसका मीनिंग होता है वॉन्डरर, जो वॉन्डर करते हैं, जो घूमते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेरेस क्या है, ये लार्जेस्ट एस्टेरॉइड है, प्रोटो प्लैनेट है और ड्वार्फ प्लैनेट है, तो इसको याद रखना। देन मीटियोर्स एंड मीटियोरॉइड्स क्या होती हैं, शूटिंग स्टार्स होते हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स होते हैं जो अर्थ की तरफ आते हैं और कोलिजन के कारण, एस्टेरॉइड के साथ कोलिजन के कारण ये रॉक्स के फ्रैगमेंट होते हैं। ये अर्थ पे आने के पहले ही बर्न अप हो जाते हैं और अगर अर्थ तक आ जाते हैं तो मीटियोराइट्स कहलाते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं, इनको विजिटर्स ऑफ द सोलर सिस्टम बोलते हैं, फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं और विजिबल बस कब होते हैं, जब ये सन के पास आते हैं। तो आइस मेल्ट होती है, डस्ट एंड गैस स्वेप्ट होने लगता है, ऐसे अवे फ्रॉम द सनलाइट इसका ये लाइट देखने को मिलती है। ठीक है, फिर देखो स्टार क्या होता है। स्टार एक फायरी ल्यूमिनस हेवनली बॉडी होती है जिसकी खुद की लाइट और हीट होती है। और सन क्या है, नियरेस्ट स्टार है हमारे प्लैनेट के, और अप्रोक्स 10⁻22 स्टार्स कहाँ पे अवेलेबल है, यूनिवर्स में। स्टार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ देखो, पहले ये फोटो देखो, ये नेबुला था, नेबुला में ही प्लैनेट बना था। अंतर क्या है प्लैनेट और स्टार में, स्टार हैज इट्स ओन लाइट एंड हीट, and on the other hand planet has no light or heat of its own. It gets the light or heat from what, from where, sun. Sun eventually is what, sun is eventually a star. Okay, तो स्टार नेबुला, स्टेलर नेबुला में क्या होता है, स्टार तो सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इन द सेम वे आप पढ़ते हैं क्या, एटम बम, एटम बम में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। तो दोनों डिफरेंट होते हैं। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब दो पार्टिकल साथ में आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन होना। और जब एक बड़ा पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होता है तो होता है फिजन। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रोटोस्टार क्या होता है, अर्ली स्टेज होती है, इट इज येट टू बिगिन विथ न्यूक्लियर फ्यूजन। देन टी टॉरी स्टार इसका एग्जाम्पल है। अब आता है मेन सीक्वेंस स्टार, जिसका एग्जाम्पल क्या है, सन, विच इज फुल ऑफ लाइफ, और इसके कोर में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन से क्या फॉर्म हो रहा है, हीलियम एटम। अब रेड जाइंट बनेगा ये नेक्स्ट स्टेज में अगर स्मॉल स्टार है तो, और रेड सुपर जाइंट बनेगा अगर लार्ज स्टार है तो। फिर प्लैनेटरी नेबुला अगर स्मॉल स्टार है, और सुपरनोवा मतलब एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ अ स्टार, एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ अ स्टार इज कॉल्ड सुपरनोवा। और व्हाइट ड्वार्फ बनेगा ये अगर प्लैनेटरी नेबुला स्मॉल स्टार है, और न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बनेगा इन केस ऑफ लार्ज स्टार। तो ये आपको याद रखना है, नेबुला, फिर प्रोटोस्टार होगा, फिर मेन सीक्वेंस स्टार, फिर रेड जाइंट, फिर प्लैनेटरी नेबुला और सुपरनोवा, फिर व्हाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, नियरेस्ट स्टार है बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, दैट इज 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। वेरिएबल स्टार क्या करता है, वेरिंग डिग्रीज ऑफ ल्यूमिनोसिटी को शो करता है, इसका एग्जांपल क्या है, डेल्टा सेफी। पल्सर्स, वेरिएबल स्टार एमिट करता है रेगुलर पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक शॉर्टर ड्यूरेशन पे। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ हमने अपना यूनिवर्स पढ़ा,
फिर हमने पढ़ा सोलर सिस्टम विथ आवर प्लैनेट्स, और फिर हमने क्या स्टडी किया, स्टार और उसकी फॉर्मेशन की। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा वो होगा सन, और ये सारे टॉपिक खत्म होने के बाद हम मूव करेंगे कोर फिजिकल ज्योग्राफी में दी अर्थ और उसके इंटीरियर को पढ़ेंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल स्टडी विद मास्टर्स।